Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now, today we are going to start chapter number 3, Ancient Town and Scriptures. So, open your social science textbook on page number 11. Ancient Towns and Scripture. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by human being, which he creates with his own caliber, skill and creative skills. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such great civilization of human societies. Centuries old civilization still inspire human life. Out of this civilization, we shall study about हड़प्पा civilization. हमने ज़्यादातर ये दो वर्ड सुन रखे हैं, कल्चर और दूसरा है सिविलाइजेशन. आपको इसका मीनिंग पता है? कल्चर यानी संस्कृति. कल्चर जो है वो इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जबकि सिविलाइजेशन जो है वो है सभ्यता. सिविलाइजेशन वो ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है, हर एक स्टेज में उसका डेवलप करता जाता है. सिविलाइजेशन ह्यूमन खुद से क्रिएट करता है. आज उसे लगा कि आज ये चीज़ उसे इंक्लूड करनी है तो वह इंक्लूड करता है, और अगर किसी चीज़ से होती है तो वो कैलिबर से, क्षमता से होती है, स्किल से और क्रिएटिविटी से होती है. तो ये जितने भी देश हैं जिसके नाम इधर दिए गए हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, ये ह्यूमन सोसाइटी की जो भी सभ्यता है उसको इतने समय से बताते आ रहे हैं. बरसों पुरानी जो सभ्यता थी, जो ह्यूमन लाइफ है, वो अभी तक प्रभावित कर रही है. ये जो सभ्यता है उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन. We know Harappan civilization also as Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. Many of the places, the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhighadi, etc. See the locations of places of Harappan civilization in the map 3.1. Let us get introduction of town planning of some of the major cities and their features. तो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. जो ये सिविलाइजेशन है उसके जो रिमेन्स यानी अवशेष से हमें पता चला कि ये सिविलाइजेशन यहाँ पर है. तो इसके अवशेष हड़प्पा में मिले 1921 में. तो ये जो सिविलाइजेशन है उसके बहुत सारे पार्ट्स ये हमको इंडिया से ही मिल जाते हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी है. ये लोकेशन आपको मैप में दिखाए गए हैं और ये सब आप देख सकते हैं कि वो इंडिया में ही है. तो अब हम देखेंगे कि किस तरह बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी और उसके क्या फीचर्स होते थे. जो ये मैप ऊपर दिया गया है 3.1 में, वहाँ पे ये जो प्लेसेस है जो इंडिया में है वो आप मैप में देख सकते हैं. टाउन प्लानिंग. उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. All the towns were planned in a similar way. In all places, fort was on westward side and colony of common people on the east side. Turn your page. Highway separated both of them. The fort on the west was surrounded by a fortress. Most probably, rulers would have lived in the fort.
Bricks were often used in the town structures. Let us study about various features of हड़प्पन civilization. तो उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होता था, उस समय के शहर को प्रॉपर वे में बनाया जाता था। जितने भी शहर थे वो सारे एक ही से प्लान किए जाते थे। हर जगह पे किले होते थे, वो वेस्ट साइड पे होते थे। कॉमन पीपल की कॉलोनी वो ईस्ट साइड पे होती थी। हाईवे जो था वो दोनों को एक हाईवे सेपरेट करता था। फोर्ट जो था वो वेस्ट साइड में था, वो बड़े बड़े किले से घिरा था। फोर्ट्रेस बड़े बड़े किलों से घिरा हुआ था। ज़्यादातर ऐसा माना जाता था कि जो राजा महाराजा थे वो लोग रहते होंगे और ज़्यादातर ईंट का इस्तेमाल किया जाता था टाउन्स को बनाने में। मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन was their organized house arrangement. Houses were constructed on high platforms to protect them from flood and dampness. One of the features of houses of Harappa was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. Here, single and double-storied houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected north with south and the other connected east with west. उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेन फीचर था वो था उनके घरों की अरेंजमेंट। वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती थी। घरों को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे ताकि अगर बाढ़ आ जाए तो उसमें पानी नहीं भरे, वो बच सके। उस समय जो मेन सड़क होती थी वो घर के खिड़की दरवाजे थे, वो वहाँ न खुल के छोटे छोटे स्ट्रीट्स रास्ते होते थे वहाँ पर खुलते थे। यहाँ पे एक माला या दो माला टाइप के सिंपल घर होते थे। रास्ते थे वो बहुत आरामदायक थे। उस समय शहर में दो हाईवे थे। एक हाईवे नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता था और दूसरा ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता था। हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड. Roads intersected each other at right angle. Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular sections. Evidences of nightlight system has also been obtained on public roads. There was highly developed and systematic system for disposal of water in the Harappan civilization. The water from each home flowed into smaller sewer and from smaller sewer to the large sewer. Water from large sewer flowed out of the city town. A public bath has been found in मोहनजोदड़ो. तो यहाँ के जो स्ट्रीट्स थे, रास्ते वो पैरेलल थे। रोड्स जो थे वो एक दूसरे को ऐसे कट करते थे कि राइट एंगल बनता था। जो रोड्स और स्ट्रीट को इस तरह ऑर्गेनाइज किए गए थे कि पूरा का पूरा शहर या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल शेप में दिखता था। पब्लिक रोड पे रात्रि लाइट सिस्टम भी थी। उस समय पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया था। तो हर एक घर से जो पानी निकलता था वो जाकर एक छोटे सीवर यानी गंदा नाला से मिलता था और एक छोटे सीवर से दूसरे छोटे सीवर से मिलता था और वहाँ से जाके एक बड़े सीवर में मिल जाता था। बड़े नालों में से जो गंदा पानी था वो शहर के बाहर बहता था और एक बड़े से ड्रेनेज सिस्टम में जाके मिल जाता था। और ये सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम है उस समय का वो ढका हुआ था। तो उस समय मोहनजोदड़ो में एक पब्लिक बाथ भी मिला है।
In the center of this public bath, there is a pond for bathing. There are steps arranged on both the sides to get into the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festivals or on religious occasion. In addition to this, pillared houses used as assembly halls have also been found in मोहनजोदड़ो। इस पब्लिक बाथ के बीचों बीच एक तालाब था नहाने के लिए। उसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी ताकि लोग उस तालाब में उतर सके। उनके चारों ओर कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स थे। इस पब्लिक बाथ का यूज़ त्योहारों और धार्मिक कामों के दौरान किया जाता था। इसके अलावा जो पिलर्ड हाउसेस थे, जो घरों पिलर पे थे, वो असेंबली हॉल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, जो उस समय मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हरप्पा is an archaeological site located in Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. Harappa must have been the main town of Indus Valley civilization. The main feature of Harappa is its granary. About 12 grain stores have been found on the bank of river Ravi. तो हरप्पा है वो एक आर्कियोलॉजिकल स्थल है जो कि पंजाब में मॉन्टेगोमेरी ज़िलों में स्थित है, जो हाल में ये जगह पाकिस्तान में आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मुख्य शहर माना जाता है वो हरप्पा है। इस जगह की जो ख़ास बात है वो है अनाज के बड़े बड़े स्टोर रूम उस समय पे थे। लगभग 12 ग्रेन स्टोर्स यहाँ पे पाए गए हैं जो रवि नदी के किनारे पे है। लोथल इज सिचुएटेड on the bank of Bhogavo River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was a commercial port and an industrial town in ancient times. A structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels arriving here were used for loading and unloading of goods. In addition, warehouses and bead factories have been found here. So it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal. तो धोलका तालुका के भोगाव नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस समय लोथल जो है वो उस समय का कॉमर्शियल पोर्ट और इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता था। लोथल में ईंटों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर भी मिला है। तो ये स्ट्रक्चर जो मिला है उसे ऐसा माना जाता है कि ये डॉकयार्ड यानी जहाज़ बनाने का स्थल, डॉकयार्ड यानी जहाज़ बनाने का स्थल है। इसे यह माना जाता है कि शायद यहाँ पे जो जहाज़ आते हैं वो सामान उतारने या तो चढ़ाने के लिए आते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर गोदाम भी मिले हैं और मोतियाँ बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। तो इन सब बातों पे ध्यान दें तो हमें ये मान सकते हैं कि उस समय में भारत का सबसे समृद्ध पोर्ट लोथल को माना गया है। यहाँ पे सिर्फ नेशनल लेवल पे ही काम नहीं होगा, पर उस समय के हरप्पन सिविलाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड भी इस पोर्ट से किए जाते होंगे। So students, now rest of the chapter we will continue in the next video.